Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawahar. So friends, after a long break, we are again meeting on this virtual platform and we have already started with the TYBSc Inorganic Chemistry Semester 6, that is some selected topics. So today we will start with the last chapter from this unit, which is chemistry of group 18. Okay, so we all know that this group 18 is the last group in our periodic table, and there are 6 elements in this particular group. So if we visualize the periodic table, we all know that it is arranged in such a way that there is increasing number of the atomic number of the elements. At the extreme left there are all metals situated. In the middle part there are non-metals, and at the extreme right, that is the last group, which is group 18, where all inert gases are situated. So we will know about all these inert gases. So what is the comparative chemistry of this group 18 elements? So we all know that there are 6 elements situated in this particular group, which are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So these all are, as per our knowledge, they are called as inert gases, right? So what are their speciality? They are monoatomic gases, means they can exist in a monoatomic form. So generally we all know that oxygen, nitrogen, these type of gases exist in diatomic form, that is O2, N2, okay. But in case of these inert gases, they can exist in monoatomic phase. So these are initially called as rare or inert gases. All are gases. So therefore initially it was said that they are rare and inert. But after some discoveries, now it is seen that there is very little tendency of these compounds, even they exist in a abundant manner in the nature. It's not like that they exist in very few amount, they exist in even abundant number, and therefore nowadays they are referred as noble gases. So instead of calling them rare and inert, now they are called as noble gases. Means they are actually comparatively less reactive than the other elements, and they are also quite choosy in selecting the elements for forming compound, okay, and that too even very special conditions. So nowadays these gases or these elements are called as noble gases. So again we can discuss about the history of these group 18 elements. Okay, so these elements are actually determined, or we can say their discovery is quite accidental. So the first observation about the discovery of inert gases is quite long away, that is in 1885, when Henry Cavendish, he was a scientist who was performing experiment to determine the composition of air. So he passed a repeated electrical spark, or we can say arc, in a mixture of dry air free from carbon dioxide and with excess of oxygen. तो वो क्या करना चाहता था कि ही वॉन्ट टू कन्वर्ट द कंप्लीट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो वी ऑल नो कि नाइट्रोजन अगर पूरी तरह से ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो उसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा. लेकिन क्या हुआ, ही ऑब्जर्व दैट द ऑक्साइड फॉर्म, वो जो ऑक्साइड था वो तैयार हो गया, एंड व्हेन इट इज़ फॉर्म इन कॉस्टिक अल्कली सॉल्यूशन, देयर वाज नो मोर रिएक्शन which was seen, and then he removed all the excess of oxygen with the potassium pentasulfide solution. जो एक्सेस ऑक्सीजन था वो उसने रिमूव कर लिया. लेकिन उसके बाद भी उसे क्या फाइंड आउट हुआ कि देयर वॉज अ स्मॉल बबल विच वॉज अबाउट 1/20th of the original volume of air which remain unabsorbed. वो जो एक पर्टिकुलर बबल था वो किसी भी तरह से ऑक्सीजन के साथ react नहीं हुआ, it remained as it is, and that time the Cavendish could not characterize this particular compound, and then
ही केप दैट सिचुएशन एज इट इज़, और उसके बाद काफ़ी सालों बाद उस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई. सो आफ्टर दैट द डिस्कवरी ऑफ ऑर्गॉन टेक प्लेस. सो द पायनियरिंग वर्क, जो शुरू का काम था अबाउट द आर्गॉन, इट वॉज डन बाय लॉर्ड रेलिफ. Okay, so in 1894 he also tried to do some different type of experiment, and he was studying the density of gases. Okay, so during that experiment Lord Rayleigh found that 1 liter of atmospheric nitrogen, which was free from other gases, it weighed about 1.2572 grams. Okay, whereas 1 liter of pure nitrogen prepared by decomposition of compounds like oxides, then it weighed about 1.2506. मतलब अगर आप डायरेक्टली हवा से अगर नाइट्रोजन ले रहे हो तो उसका वज़न ज़्यादा मिलता है. किससे ज़्यादा मिलता है? अगर आप किसी ऑक्साइड को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को डिकम्पोज करते हो तो वहाँ पे जो वज़न मिलेगा उससे डायरेक्ट अगर हम लोग हवा से नाइट्रोजन ले रहे हैं, प्योर नाइट्रोजन भी, तो भी उसका वज़न डिकम्पोज किए हुए कंपाउंड से ज़्यादा मिलता है. सो दस द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन डिराइव फ्रॉम एटमॉस्फेयर वॉज 0.47% हायर दैन द प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी. तो ये जो छोटा सा प्रॉब्लम है उसको उसने थोड़ा आगे स्टडी किया कि भाई अगर हम लोग हवा से नाइट्रोजन लेते हैं तो उसका वज़न ज़्यादा क्यों मिलता है. ओके, सो देन ही ट्राइड टू डू सम मोर एक्सपेरिमेंट ऑन दैट. व्हाट अगेन ही डिड, he took the help of some other chemist. Then Rayleigh and his friend William Ramsay, they again performed some more experiment where they passed a voltage of about 2000 volt through the platinum electrode. ऐसा जो हाई वोल्टेज वाला करंट था वो उन्होंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ पास किया. सो व्हाट हैपन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड विच विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गेव हायर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. अगर हम गैसेस से इलेक्ट्रिकल आप पास करते तो ऑब्वियसली उनका एक दूसरे के साथ रिएक्शन हो जाएगा एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड वॉज एब्जॉर्ब, उसको उन्होंने एब्जॉर्ब किया. द लास्ट ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन जो उसमें बचे थे, इट वॉज एब्जॉर्ब विथ अल्कलाइन पायरोगैलोल. Okay, so during this experiment they also found a new element. Okay, so William Ramsay, he was successful in isolating that new gas, passing air first over red hot copper and the residual nitrogen over the heating magnesium. तो जैसे जैसे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया वो जो नया गैस था वो उन्होंने सेपरेट किया. There was also a separate spectrum for that, and this new gas was named as argon. ये जो नया गैस उन लोगों को मिला उनका नाम उन्होंने argon ऐसे रखा, which is called as inactive. तो ये जो argon है उसका मीनिंग क्या होता है? It is inactive. फिर after that, after some years, there was a discovery of helium. तो the first inner gas it was discovered actually was helium. So in 1868 Jensen was a scientist who observed a new prominent yellow line. तो ये जो yellow line है D3 नंबर की line, which differed in a position from D line, that is D1 and D2 of sodium in the solar spectrum during the total solar eclipse. So solar eclipse के during जो light निकलती है उसका अगर हम लोग कंपोजिशन देखते हैं या उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को एक नई लाइन दिखाई दी. सो दिस लाइन D3 विच वॉज, इट वॉज नॉट करस्पॉन्ड टू द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एनी नोन एलिमेंट. तब तक जब जितने एलिमेंट थे उसमें से किसी की भी लाइन वो नहीं थी. तो इसीलिए लेटर ऑन फ्रैंकलैंड एंड लॉकेट they concluded that the line corresponding to this particular element is not known and therefore it is something new element. तो finally उसके ऊपर और स्टडी हुआ
and then they named this particular element as helium. तो ये जो helium नाम है ये ग्रीक नाम से लाया है, एंड ग्रीक वर्ड में, ग्रीक लैंग्वेज में हेलियोस इसका मतलब होता है सन. तो इट केम फ्रॉम सन एंड देयरफॉर ये जो नया एलिमेंट है उसका नाम हेलियम ऐसे रखा गया. देन आफ्टर दैट देयर वाज स्लोली डिस्कवरी ऑफ अदर इनर्ट गैसेस. तो उसके बाद 1898 में अगेन रैमसे एंड देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज ट्रैवल. दे सस्पेक्टेड दैट argon to be in reality is a mixture of number of many other gases. उन लोगों को जो एक पर्टिकुलर argon लगता था एक्चुअली वहाँ पे it can be a mixture of other gases also. So therefore they perform some experiment using spectroscopic technique and they fractionated 18 liters of liquid air. तो ये एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें क्या मिला कि देर आर मोर वोलाटाइल फ्रैक्शन ऑफ हेलियम एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सम मोर गैसेस. ओके, तो जो नया एक उनको एलिमेंट मिला उसका नाम उन्होंने रखा नियॉन. ओके, तो नियॉन का मीनिंग होता है न्यू. उसके बाद वो जो वेपर है उसकी डेंसिटी उन्होंने चेक की एंड देन मोर एंड मोर अदर इनर्ट गैसेस वेयर डिस्कवर्ड. तो ये जो रामसे एंड ट्रैवर्स थे उन्होंने और दो गैसेस आइसोलेट किए, सेपरेट किए एंड दे वेर नेम्ड एज क्रिप्टॉन एंड जेनॉन. तो क्रिप्टॉन का मीनिंग होता है हिडन, ओके, एंड जेनॉन का मीनिंग होता है स्ट्रेंजर. सो दिस वे फाइनली मेनी इनर्ट गैसेस वेर डिस्कवर्ड. देन इन 1902 the family of inert gases was completed by the discovery of radon, and this discovery was done none other than Rutherford. Okay, तो ये Rutherford और उनके एक साथी थे सोडी. तो इन दोनों ने मिलके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे और वहाँ पे उन लोगों को रेडॉन की डिस्कवरी हुई. Then after that all the scientists came together and they said that these particular gases are chemically inactive, okay, and therefore they should give a separate position in the periodic table. हम सबको पता है कि मेंडलीव जिन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया है तब तक ये जो इनर्ट गैसेस है उनकी डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, इसलिए उनके लिए कोई जगह भी नहीं थी. सो देयरफॉर दिस different scientists they came together and they said that there should be some particular position for these inert gases, and therefore they gave a separate position to the extreme right for these inert gases. तो ये जो inert gases है ये हमारे मेटल्स और नॉन मेटल के बीच जो कनेक्शन है उनको अच्छी तरह से दिखा सकते हैं. सो देन द periodic table was complete when there was discovery of these particular inert gases. तो हम लोग स्लोली देख सकते हैं कि in 1868 Perry Jensen, he was a scientist who saw a bright yellow line during the solar eclipse and he thought that it was sodium, okay, but later he identified it as a helium. उसके बाद जैसे मैंने बताया इन 1875 हेनरी कैवेंडिश जो थे उन्होंने नाइट्रोजन रिमूव करके, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके ही फाउंड सम अनइफेक्टेड नोबल गैस. उसके बाद इन 1894 लॉर्ड रेलिफ ही डिस्कवर्ड दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज 0.45% heavier because of some lazy element called as argon. फिर उसके बाद 1898 में विलियम रैमसे जो थे उन्होंने कैवेंडिश के साथ मिलके एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ पे उन्हें पता चला कि the argon is not only argon but it is mixture of some other gases which is mixture of neon, krypton and xenon. And finally in 1902 there was discovery of Rutherford and Soddy who isolated radon from the
emanations of radioactive minerals. So इस तरीके से in different years there was discovery of all inert gases. ये कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, आगे जाके क्या हुआ in 1923. So it is quite earlier than our era. There was a big leap of years. The next important milestone of the noble gases was discovered when नील बार्लेट मेड द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस. मतलब जैसे जैसे नोबल गैस मिलते गए उनके ऊपर स्टडी चलता गया कि ये कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, है ना. एंड फाइनली नाउ इनिशियली दे वेर कॉल्ड एज इनर्ट. तो तब तक उन लोगों को इनर्ट कहा जाता था क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते ऐसा समझा जाता था. लेकिन इन 1923 ये जो नील बार्लेट है उन्होंने क्या किया, he prepared a compound platinum hexafluoride with xenon. So the other compound of xenon were also found later. तो तब उन लोगों को पता चला कि ये गैसेस इनर्ट नहीं है बल्कि सम सिचुएशन में, सम पर्टिकुलर कंडीशन में वो इवन कंपाउंड भी फॉर्म करते. देन इन फाइनली 2006 जो एकदम अभी अभी का टाइम है, scientists of Russia announced that they successfully made another noble gas और उसका जो नंबर है वो है एलिमेंट 118. लेकिन एलिमेंट 118 was made in 2002 and 2005 by particle accelerators. लेकिन there were only 3 atoms were made. Still the physical property of this particular compound or element is not yet determined. तो अभी उसके ऊपर स्टडी चल रहा है एंड फाइनली वी कैन गेट समथिंग न्यू आउट ऑफ दिस. तो ऐसे जो ये सारे इनर्ट गैसेस है, एक्चुअली दे आर नॉट इनर्ट गैसेस, वी कैन से नाउ दे आर नोबल गैसेस. नोबल का मतलब क्या होता है, हम्बल, है ना, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता, है ना, सादा सीधा रहता है. उसी तरह से ये जो गैसेस है ईजीली किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते, है ना. सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस. तो इनकी स्पेशलिटी क्या है वो हम लोग देखेंगे. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द ऑकरेंस ऑफ दीज पर्टिकुलर ग्रुप 18 एलिमेंट्स, है ना. सो ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल. हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी देखेंगे, पर पहले हम लोग उनका परसेंटेज देखेंगे, कितने अबंडेंस में नेचर में मिलते हैं, है ना. सो दे आर हाईली स्टेबल क्योंकि उनकी जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वो कंप्लीट होती है ना. तो अगर वो शेल कंप्लीट है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन हैं 2 या 8, देन देयर इज़ नो नीड टू रिएक्ट विथ एनीवन. सारे जो अदर एलिमेंट्स है दूसरे के साथ रिएक्शन क्यों दिखाते हैं, बिकॉज दे वांट टू अचीव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन इनके पास ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो दे विल नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट एंड देयरफॉर दे आर हाईली अनरिएक्टिव और स्टेबल. सो दे ऑक्यूपाई द लास्ट कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स है, देर आर 6 एलिमेंट, ये हम लोगों ने पहले से ही देखा है. तो उसमें सबसे पहला नाम आता है हेलियम का, है ना. तो ये जो हेलियम है उसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ वेरियस गैसेस, एटमॉस्फेयर में हमारे जितने गैसेस मिलते हैं उसमें से हेलियम का नंबर है 0.0005%. ओके, ये जो है वो एक प्योरली नेचुरल गैस है एंड समटाइम द मिनरल्स लाइक मोनाजाइट और पिच ब्लेंड या फिर सन के एटमॉस्फेयर में भी ये हेलियम मिल जाता है. ओके, सो देयर ऑकरेंस इज एक्चुअली नियर द सन्स एटमॉस्फेयर. सन पे जो फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है ना, तो वो फ्यूजन रिएक्शन हेलियम के वजह से होता है. हेलियम 4 इज़ फॉर्म बाय द अल्फा डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. फिर दूसरा जो है दैट इज़ योर नियॉन, उसका अबंडेंस है 0.0015%. नियॉन इज प्रेजेंट टू द एक्सटेंट अबाउट 18 ppm बाय वॉल्यूम इन ड्राई एयर. ओके, और जनरली वो इग्निशियस जो रॉक्स होते हैं उनके पास मिलता है. देन द थर्ड एलिमेंट ऑफ द 18 ग्रुप इज़ अर्गॉन. वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में मिलता है. देखो, इट्स प्रेजेंस इज़ नियर अबाउट 0.92
932%. ये जो है it is formed in air mostly by the electron capture of potassium. तो पोटेशियम हमें पता है 19 उसका एटॉमिक नंबर और 14 इज़ द एटॉमिक वेट मास नंबर. तो वो जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है तो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ आर्गॉन. तो इसीलिए बार बार बहुत सारे पोटेशियम इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं एंड देयर फोर कंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन टेक प्लेस. देन देयर इज़ नंबर ऑफ क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन मिलता है हमें 0.0001% नंबर में. ओके. फिर देयर इज़ रेडॉन. उसका नंबर तो बहुत कम है. रेडॉन से पहले आता है जेनॉन जो है 0.0001%. ये बहुत कम नंबर में मिलते हैं, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा हम लोग डिस्कवरी नहीं कर सकते. इतना पता है कि दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव बट सम टाइम इन सम कंडीशन दे कैन रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स. एंड फाइनली देयर इज़ रेडॉन. तो ये रेडॉन है, इट इज़ रेडियो एक्टिव एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय डीके ऑफ रेडियम एंड थोरियम. तो क्या है कि उसका हाफ लाइफ है. ओके. सो जो रेडॉन 222 है उसका हाफ लाइफ है 3.8 डेज. तो डेज में होने के वजह से कंटिन्यूसली वो डिकम्पोज होता रहता है और वी कैन से डीके होता रहता है और इसी वजह से उसका जो परसेंटेज है बहुत कम है. इट इज़ ऑब्टेन बाय रेडियो एक्टिव डीके एंड देयरफॉर इट्स percentage of abundance is very very less. So here is about the all information about group 18 element occurrence. So in our next lecture we can discuss about the artificial methods by which we can prepare these inert gases. Okay. And then we will discuss about their physical and chemical properties. Okay. So till that you take care and stay safe. Thank you.